Hello everyone, good morning. Good to see you working geometry yesterday so finely that I was really very much happy yesterday. When you solved all the sums very properly, correctly, very happy. So now I believe that I don't have to take any kind of trouble. I don't really have to worry for any one of you all. Okay, so it's a very good going. Keep it up. Now, today, in fact, we are actually going to work on the topic. So, we are going to start the topic understanding quadrilateral from today. The topic from the textbook. The first part of the textbook is basically nothing but definition of the curve and understanding polygons in general. So let us understand both the concept very clearly. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो व्हाट डू यू मीन बाय कर्व. तो हम रेगुलर वर्ड्स में जो कर्व सोचते हैं दैट एंड मैथमेटिकल कर्व इज कंप्लीटली अ डिफरेंट टास्क. ओके, सो इफ इमेजिन if I put a pen on the screen and if I do something like this, we call it as a curve. Simple. So if I keep the pen and if I continue that and if I stop at some moment, we call it as curve. That's it. There is no any other definition than this. So imagine if I take a pen at one particular moment and then I continue till here. Is this a curve now? Yes, it is also a curve. You may say it is a straight line, sir, but the definition of curve in mathematics is completely different. It says if you keep the pen on the paper, if you continue drawing somewhere, and if you stop at some moment, then that is called as a curve. So all that which will fall under this category will be curves. So let me tell you, even if I draw a triangle, it is also a curve because you keep a pen here and continue drawing, it is a curve. Okay, even if I take a circle, it is a curve because I started at this point and I ended at some particular point on the paper. It's a curve. Clear? Got the point? Did you understand it? No confusion, no doubt. Then what is not curve? Okay, now that is very important thing to understand. That is not curve. वो मैंने कैटेगरी यहाँ पे लिखा ही नहीं है. Not curve. Which one cannot be the curve? Now, for example, if I take a circle here and if I draw another circle inside it, it's not a curve. Why it is not a curve? The reason it is not a curve is I have to lift the pen to draw the another circle inside. So it is not a single curve. Simple as that. So imagine if I draw something like this, then also it is not a curve. Now imagine if I draw a square like this, and inside if I draw some eyes and maybe some face like that, it is not a curve because I have to lift the pen to draw all that. Okay, but imagine somehow if I connect it like this, now it is yes going to be a curve. Okay, because I don't have to lift the pen to draw that. Clear? Got the point? Do you understand it? So it's a simple thing. So what is the definition of curve? कर्व वो होता है जिसके लिए पेन उठाने की जरूरत ना पड़े. दैट्स इट. ठीक है, तो कोई भी हो, स्ट्रेट लाइन हो, सर्कल हो, ट्रायंगल हो, हेक्सागन हो, कुछ भी हो, अगर आपको पेन उठाने की जरूरत ना पड़े तो वो कर्व होता है. फिनिश्ड. नाउ टू इंपॉर्टेंट थिंग. बोथ इज टॉकिंग both in fact talking about curve only. It is closed curve, but one thing is simple here and here complex. So let me draw some simple curves. It is a simple curve, simple curve, simple curve, again a simple curve. Of course close. Why we call it as close, you understand now. That's a very simple thing. ठीक है ना? Then we can go for even this is a simple curve, triangle like strip, simple curve. बताता हूँ मैं आपको, डेफिनेशन बताता हूँ कि सिंपल कर्व कौन सा होता है. डोंट वरी. ओके देन
सिंपल कर्व, ठीक है, ऑल दीज आर सिंपल कर्व। कॉम्प्लेक्स कर्व्स क्या होता है? ओके, आई विल टेक द सर्कल इटसेल्फ, complex curve, then we have something like this, right? Complex curve, ठीक है, we have something like that here. So if I draw inside like this, it's going to become a complex curve. Imagine it's a square, right? So if I draw diagonals here inside, complex curve हो जाएगा. If it is a triangle, if I extend it, it's going to be complex curve. Now these are simple curves and these are complex curves and both are close. Close क्यों है वो तो समझ में आ गया आपको. Close है क्योंकि कुछ अंदर एक कोई तो एरिया स्पेस हमें मिल जाता है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज क्लोज. एनीवे, तो सिंपल कब होते हैं? जब कोई भी कर्व की लाइन एक दूसरे को क्रॉस ना करे, वी कॉल इट एज सिंपल कर्व. यहाँ पे देखो लाइंस कैसे कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं. और एक अलग डेफिनेशन है, और एक डेफिनेशन भी है. इमेजिन करो कि इस कर्व पे जो सिंपल है, कोई भी मैंने पॉइंट लिया, from that particular point you can either go at this direction or you can go at this direction. That means you have only two direction to go. We call such curves as simple curve. If at any point you need to go or you have more than two directions, then it will be a complex curve. Okay, it's a very specific definition, very specific definition. Again I repeat, at any point if you get only two directions to go on the curve, along the curve, we call it as simple curve. So you can take any point. अब imagine करो यहाँ पे लिया तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे. Okay, so all these are simple curve. कोई भी point ले लो. One direction is here, one is here. So all these are nothing but called as a simple curve. लेकिन यहाँ पे imagine करो कि इस point पे मैंने रखा, इस point पे. So isn't it there is a one direction, here is one more and here is one more. Three directions है, more than two है. We call it as complex. ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने पेन रखा तो फोर डायरेक्शंस है. गॉट इट. अगर इमेजिन यहाँ पे रखा तो फोर डायरेक्शंस है, सो आई कैन नॉट कंसिडर दिस एज अ सिंपल कर्व, तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स कर्व. यहाँ पे रखा तो तीन डायरेक्शन ऑलरेडी है. हियर इफ आई कीप तो आई हैव फोर डायरेक्शंस. सो ऑल दीज आर नथिंग बट क्लोज बट कॉम्प्लेक्स कर्व. ओपन कर्व क्या होता है? लाइक एंगल, ओपन कर्व, ठीक है. आर्क लाइक स्ट्रक्चर, ओपन कर्व, दे आर ओपन कर्व. सिंपल है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. हाँ, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल कर्व समझने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन दैट व्हाट यू हैव टू मैनेज. ठीक है, अभी आप बताओ मुझे कि ये कॉम्प्लेक्स है कि सिंपल कर्व है. आप बताओ ज़रा फटाफट. ये एक काइंड ऑफ अ स्पाइरल है, बताओ ये क्या है? ओके, सबसे पहले ये कर्व है. येस, इट इज़ अ कर्व बिकॉज आई डोंट हैव टू लिफ्ट द पेन. कर्व है. सेकेंड थिंग, ये क्लोज है? बिल्कुल नहीं है. ठीक है. थर्ड थिंग, ये सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है? कैसे डिसाइड करेंगे? किसी भी पॉइंट पे आप लोग पेन रखो, दो ही डायरेक्शन मेरे पास है. कोई भी पॉइंट लो, दो ही डायरेक्शन है. कोई भी पॉइंट लो, दो ही डायरेक्शन है. तो ये क्या है? सिंपल कर्व है. राइट? तो डेफिनेशन इज वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर ऑफ सिंपल कर्व एंड कॉम्प्लेक्स कर्व. ओके, क्लियर? चलो, नाउ वी हैव टू वर्क ऑन फॉर पॉलीगॉन्स. सो बेसिकली क्या होता है पॉलीगॉन? पॉलीगॉन वो है which is just made up of straight lines. Okay, straight curve I can say. Okay, the polygon is that which is made up of straight curve. Of course it is supposed to be close and it is supposed to be simple. तो तीन चीजें रिक्वायर्ड है. एक straight lines, second it has to be simple curve, simple and close curve. ठीक है, तो दोज आई कैन कंसिडर एज ए पॉलीगॉन. तो कौन से पॉलीगॉन हो सकते हैं? देख लो. अब ये बोलोगे तो ट्रायंगल है. तो ट्रायंगल पॉलीगॉन होता है क्या? हाँ होता है. स्ट्रेट लाइन से बनता है, सिंपल है, क्लोज है, पॉलीगॉन. स्क्वायर, क्वाड्रिलैटरल, रेक्टेंगल, ऑल दीज आर पॉलीगॉन्स. ठीक है. नॉट ओनली दैट, पेंटागॉन, कोई भी काइंड ऑफ पेंटागॉन हो, पॉलीगॉन है. ठीक है. हेक्सागॉन,
It's a polygon. Okay, got the point? Do you understand? Then is this a polygon? No, it is not a polygon. Why it is not a polygon? The reason is it has no straight lines. Okay, then is this a polygon? अभी ये तो straight line है, लेकिन ये क्या है? Simple नहीं है. This is not a simple curve. That's why it is not a polygon. So understand, minute things you have to understand. Okay. Then imagine if I take in this way, is it a polygon? Check कर लो. तो इट इज़ अगेन नॉट अ पॉलीगॉन बिकॉज ये सिंपल कर्व नहीं है, इस पॉइंट पे बहुत सारे डायरेक्शन जा रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली इट इज़ नॉट अ सिंपल, सो इट इज़ नॉट अ पॉलीगॉन. क्लोज है, स्ट्रेट लाइन से है, लेकिन पॉलीगॉन नहीं है. गॉट द पॉइंट? इंटरेस्टिंग है ना? तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी. कम ऑन टेल मी वन थिंग वी हैव चेक, दैट इज़ व्हाट इज़ पॉलीगॉन. देन टू डिफाइन पॉलीगॉन वी नीडेड कर्व, सो हमने कर्व के बारे में डिस्कस किया. सिंपल कर्व, क्लोज कर्व के बारे में डिस्कस किया. ओपन कर्व की ज़रूरत आपको इतनी ज़्यादा नहीं है, तो यू डोंट हैव टू वरी फॉर इट. लेकिन सिंपल कर्व एंड कॉम्प्लेक्स कर्व यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी प्रॉपरली. जो कर्व होता है वो समझ में आ गया, जो कर्व नहीं होता वो भी समझ में आ गया. कर्व कौन सा नहीं होता? जिस कर्व को ड्रॉ करने के लिए आपको पेंसिल और या फिर पेन उठाना पड़ता है, वी कॉल इट एज नॉट कर्व. इट इज़ नॉट अ कर्व. ठीक है, कर्व कौन सा होता है वो भी आपको समझ में आ गया. तो बेसिक आइडिया आपको अभी समझ में आ गया. पॉलीगॉन उसके बाद हमने देखा कि क्या होता है. स्ट्रेट लाइन से बना हुआ सिंपल क्लोज फिगर इज नथिंग बट अ पॉलीगॉन. ठीक है, सिंपल एज दैट. लेकिन नाउ विल टॉक अबाउट कि पॉलीगॉन कितने टाइप के होते हैं. पॉलीगॉन दो टाइप के होते हैं. दो टाइप के. कौन से दो टाइप से देखते हैं? एक होता है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन एंड दूसरा होता है कॉनकेव. ठीक है, तो इसके भी अलग अलग डेफिनेशन है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं कॉनकेव पॉलीगॉन ड्रॉ करता हूँ. पॉलीगॉन है तो मैं आई कैन ड्रॉ एनीथिंग. ठीक है, ऑल दीज आर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन. कॉनकेव पॉलीगॉन कौन से होते हैं? लेट अस सी. कॉनकेव पॉलीगॉन इस कैटेगरी के होते हैं, देख लो. ये है कॉनकेव पॉलीगॉन. मे बी ये भी एक कॉनकेव पॉलीगॉन हो सकता है. इवन दिस इज अ कॉनकेव पॉलीगॉन. ठीक है, तो ये है कॉनकेव पॉलीगॉन. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स पॉलीगॉन एंड कॉनकेव पॉलीगॉन? सबसे पहले the first basic difference that what you need to understand, that interior angles are less than 180. All the interior angles if you check of this polygon is less than 180. अगर हो, ये है बड़ा लेकिन लेस देन 180 है. ओके, रिफ्लेक्स नहीं है. मोर देन 180 मतलब रिफ्लेक्स. कोई भी एंगल रिफ्लेक्स नहीं होना चाहिए. वी कॉल इट एज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन. सो इन दिस केस इंटीरियर एंगल ये तो लेस देन 180 है, ये भी लेस देन 180 है, ये भी लेस देन 180, लेकिन ये एंगल देख लो एक बार ठीक से. Isn't it that is interior angle? And लेकिन वो कैसा है? It is more than 180. We call it as concave polygon. Now in second case, this angle is more than 180, concave polygon. In the third case, you may not find that, but let me tell you, ये angle है जो more than 180 है. तो first thing or first major difference between convex polygon and concave polygon is angle. Okay, all the interior angles in a convex polygon are less than 180, whereas in concave polygon all the interior angles may not be more than 180, but even if one angle is reflex, it is called as a concave polygon. Okay, so if any one angle is reflex, we call it as a concave polygon. Got it? Next one. Second difference is if I join any two points of the polygon, any two points, अभी मैंने कोई भी दो पॉइंट ज्वाइन कर लिए. ऐसे वाले मैंने कोई भी दो पॉइंट्स ऐसे ज्वाइन कर दिए. any two points of the polygon if I join, right,
nothing goes out of this particular area. Okay, always it is inside the polygon. But whereas in concave polygon, if I join any 2 points, like if I join these 2 points, isn't it is outside the polygon? If I join these 2 points, isn't it is outside the polygon? If I join these 2 points, isn't it is outside the polygon? Then we call it as concave polygon. Okay, so it's very clear in convex, if I join any 2 points, that line will be always in the interior of the polygon. Whereas in the concave, if I join any 2 points, the lines maybe are outside the polygon, and such polygon are called as a concave polygon. ना आप बोलेंगे तो ये अगर मैंने ज्वाइन किया या फिर ये ज्वाइन किया तो ये तो इंटीरियर में रह रहे हैं, लेकिन हाँ, नॉट इवन अ सिंगल लाइन शुड गो आउट ऑफ दिस पॉलीगॉन. ओके, तो एक भी अगर बाहर जा रही है, जैसे कि इस केस में जा रही है, इन थर्ड केस, थर्ड वन, ये जो थर्ड है ना, इन थर्ड वन व्हाट इज हैपनिंग, ओनली एक ही लाइन है जो बाहर जा रही है, बाकी सारे पॉइंट्स अंदर ही है, देख लो अंदर ही जाएंगे, लेकिन फिर भी इट इज कॉल्ड एज अ कॉनकेव पॉलीगॉन. गॉट इट, अंडरस्टूड. सो बहुत कुछ चीज़ें एक साथ हमने देखी, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करें, हम लोग डायरेक्टली वर्क करते हैं एक्सरसाइज पे. तो देख लेते हैं एक्सरसाइज पे, देखते हैं एग्जैक्टली हमें क्या पूछा है. तो मैं जस्ट स्क्रीन राइट करता हूँ. ठीक है, आपको करना क्या है, सबसे पहले सिंपल कर्व, कुछ नहीं करना, क्लासीफाई द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग. इसमें से सिंपल कर्व आपको ढूंढ के यहाँ पे लिखने हैं. सिंपल कर्व, सिंपल कर्व का मतलब आपको पता है कि एक तो कर्व होना चाहिए, दैट मीन्स पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, और दूसरी चीज़ कोई भी पॉइंट उस कर्व पे अगर लिया तो डायरेक्शन दो ही होने चाहिए उस पॉइंट के अराउंड, दैट्स इट. तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल कर्व को टिक करते हैं, या फिर हम यहाँ पे लिखते हैं सिंपल कर्व. तो इज दैट ए फर्स्ट वन इज सिंपल कर्व? यस, इट इज़ अ सिंपल कर्व. सेकेंड वन, यस, सेकेंड इज ऑल्सो सिंपल कर्व. थर्ड सिंपल कर्व है क्या? ये तो कर्व ही नहीं है बेसिकली, क्योंकि हमें उठाना पड़ेगा ना पेन को, तो ये कर्व ही नहीं है. लेट अस नॉट कंसिडर दिस फॉर एनीथिंग. ओके, क्योंकि कर्व ही नहीं है. फोर्थ वन, इस पॉइंट पे अगर मैंने रखा तो इजंट इट देयर आर 4 डायरेक्शन, तो ये सिंपल कर्व तो है नहीं, तो 4 जान दो. फिफ्थ वन, यस सिंपल कर्व है. सिक्स वन, यस सिंपल कर्व है. सेवेंथ वन, यस सिंपल कर्व है. एट्थ वन, थिंक अबाउट इट, देख लो यहाँ पे मैंने पेन शुरू किया, यहाँ से गए, यहाँ से पेन शुरू किया, यहाँ पे आ गया, तो कोई बात नहीं, ये तो कर्व है. लेकिन कर्व है कि नहीं ये थोड़ी पूछा है, सिंपल कर्व है कि नहीं पूछा है. सिंपल कर्व किस प्रकार का होता है, इनकेस इफ आई कीप एनी वेयर ऑन दिस कर्व देयर शुड बी ओनली 2 डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पे तो 3 है, तो इसका मतलब ये भी सिंपल कर्व नहीं है. तो मेरे पास सिंपल कर्व आ गए. ठीक है, सिंपल क्लोज कर्व, दोनों एक ही होती है ना बात. अगर क्लोज है तो क्लोज है, देख लो ऑल दैट विच आर सिंपल, अभी भी हमने जो मार्क किए उसमें से क्लोज कौन से है, सारे क्लोज है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम. ठीक है ना, सारे के सारे क्लोज है. पॉलीगॉन इसमें से कौन सा है, स्ट्रेट लाइन से कौन सा है पॉलीगॉन. पॉलीगॉन फर्स्ट वन इज अ पॉलीगॉन, यस. सेकंड, यस. थर्ड तो कर्व ही नहीं है. फोर्थ पॉलीगॉन हो सकता है, लेकिन ये सिंपल नहीं है, दैट्स व्हाई फोर्थ वन इज ऑल्सो नॉट अ पॉलीगॉन. अगर हाँ वो ऐसे होता सिर्फ, देन यस इट वुड हैव बीन अ पॉलीगॉन, लेकिन वो तो लाइंस ड्रॉ किए हुए बीच में, तो हम लोग उसको पॉलीगॉन नहीं कंसिडर करेंगे. फिफ्थ वन पॉलीगॉन नहीं है क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही है. सिक्स वन श्योरली नॉट, कर्व है, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इट इज ऑल्सो नॉट अ पॉलीगॉन. तो फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली आर द पॉलीगॉन. अभी इन दोनों में से कॉन्केव को, दो ही तो पॉलीगॉन है, अब इन दोनों में से कॉन्केव कौन सा है, कॉन्वेक्स कौन सा है, यही बस पूछा है. तो ये वाला देख लो, यहाँ पे एक एंगल रिफ्लेक्स है, तो ये कॉन्केव है, और ये कॉन्वेक्स है. दैट्स इट, राइट, गॉट द पॉइंट, डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, सो ये आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे, नो प्रॉब्लम. चलो आगे बढ़ते हैं. थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, लेकिन ज़्यादा आज नहीं काम करने वाले, डोंट वरी. हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव. डायगोनल्स पूछा है, ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, तो विल बी डिस्कसिंग दिस ऑल थिंग्स इन द लेटर सेशन, दैट मीन्स द नेक्स्ट सेशन. अभी बस आप लोगों को यही सेशन और यही पार्ट ठीक से पता होना चाहिए था, इसलिए आई जस्ट टुक दिस सेशन क्वाइट लॉन्ग. तो हम नेक्स्ट टाइम, मतलब डायरेक्टली टुमारो, आज ज़्यादा काम नहीं दे रहा हूँ मैं, टुमारो डायरेक्टली हम लोग बाकी चीज़ों पे वर्क करेंगे. लेकिन आज आपको ये क्लियरली पता होना चाहिए राइट नाउ कि कर्व क्या होता है, नॉट कर्व क्या होता है, कॉम्प्लेक्स
कर्व क्या होता है, सिंपल कर्व क्या होता है एंड पॉलीगॉन क्या होता है। ये 5 चीज़ें यू हैव टू नो वेरी क्लियरली, वेरी केयरफुली। ठीक है, तो आज ज़्यादा काम भी नहीं दे रहा हूँ, कुछ नहीं, बस इतना ही काम है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू टुमारो।